Hello everyone, welcome back to the video. This is Richa Singh here and I hope that you people are fine and safe at your places. So we are continuing the story of village Palampur, chapter number 1 of economics, and in the previous video we have discussed about the distribution of land in the village Palampur, means how the land was distributed among 450 families of the people residing in the village, out of which we got to know that 150 families of Dalits were landless and 240 families cultivate small plots of land and who their land measurement is even less than 2 hectares in size, and only 60 families are there of medium and large farmers. So this data moving us towards a major problem faced by Indian farmers in our country. But before discussion, let's have a look at picture number 1.6. There are 6 different pictures in the same frame. Work on the fields means how farmer used to work on fields. कैसे किसान fields पर काम करते हैं. ये wheat crop का season है. Different pictures are of प्लॉगिंग बाय बुलॉक्स, जहाँ पर बुलॉक्स के मदद से प्लॉगिंग की जा रही है. सोइंग यानी बीज लगाए जा रहे हैं. स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं. कल्टिवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड. नाउ देयर इज़ अ पिक्चर इन विच कल्टिवेशन इज़ गोइंग ऑन थ्रू ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक विधि से हो रही है. ट्रेडिशनल मेथड से कल्टिवेशन हो रहा है. एंड कल्टिवेशन बाय मॉडर्न मेथड एंड कटिंग ऑफ क्रॉप्स. So these are different stages of agricultural activities that has been shown in this picture. Now there are some questions for discussion that is based on picture number 1.5 that was showing land distribution pattern among the 450 families of Palampur. Now consider that picture. Can you shade the land cultivated by small farmers? वहाँ पर आप पिक्चर को कंसिडर करके उन एरियाज़ को शेड करिए जो स्मॉल फार्मर्स उस पर कल्टिवेशन करते हैं. एंड यू कैन ईजिली गेट टू नो बिकॉज देयर प्लॉट्स आर क्वाइट स्मॉल इन साइज, सो यू कैन शेड इट वेरी वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डू सो मैनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. एक क्वेश्चन पूछा गया उसी पिक्चर के बेस पर कि क्यों मैक्सिमम फैमिलीज़ यहाँ पर ऐसी हैं जो इतने छोटे प्लॉट्स पर कल्टीवेशन करती हैं. तो इसका आंसर ये हो सकता है सिंपली दैट दे आर पुअर और दैट दे आर स्मॉल फार्मर्स. दे डू नॉट हैव so much of land. That's why they are just cultivating on a small plot of land, because most of the land that is covered by 60 families of medium and large farmers. They are having more than 2 hectares of land. And there are some farmers having more than even 10 hectares of land. So that's why the land left with the small farmers are very small in size. The distribution of farmers in India and the amount of land they cultivate is given in the following graph. As you can see a graph on your screen. ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि कल्टिवेटेड एरिया कितना है भारत में और नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं. Distribution of cultivated area and farmers. As you can see the cultivated area by marginal and small farmers, medium and large farmers. So the cultivated area is showing 55.40% in the first graph. These particular areas are shown by marginal and small farmers, and on the other hand the lighter portion is covered by the medium and large farmers. So the population of marginal and small farmers are more in comparison to medium and large farmers, but in terms of the land distributed to them, their land area is less in comparison to the medium and large farmers. यानी कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है उनकी आबादी तो ज़्यादा है in comparison to the farmers who are having more than 2 hectares of land. लेकिन उनके पास जो लैंड कल्टीवेशन के लिए एरिया प्रोवाइड किया गया है वो काफ़ी कम है. और ये जो डेटा है ये रियल डेटा है, ये रियल स्टैटिस्टिक्स है. सो दिस इज़ द ट्रू कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स इवन नाउ. All the marginalized and small farmers who are having less than 2 hectares of land got very minimal area for cultivation and their population is quite large.
On the other hand, the farmers who are having more than 2 hectares of land, those who are considered as medium and large farmers, they are less in numbers, but the area under their cultivation is quite large in comparison to the small farmers. So that's why there is an inequality in the agricultural sector also. There's a question for discussion. Would you agree that the distribution of cultivated land is unequal in Palampur? Do you find a similar situation for India? Explain. विच मीन्स ये पूछा गया कि क्या आप अग्री करते हैं कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर में कल्टिवेटेड लैंड का वो अनइक्वल है, असमान है. ऑब्वियसली है, बिकॉज ऑल द फार्मर्स और ऑल द फैमिलीज डू नॉट हैव इक्वल एरिया फॉर कल्टिवेशन, तो अनइक्वल तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही. डू यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया? क्या आपको ये सिचुएशन भारत में एक्चुअल में रियलिटी में भी देखने को मिलती हैं? ट्रू, because you can see and you can explain it from this graph 1.1. It is showing the real data, statistical data, in which the population of marginal farmers and small farmers has been shown with a large number, and the area under their cultivation is shown in a smaller quantity or number. Now the next topic, as we are discussing the factors of production, हम factors of production पर चर्चा कर रहे हैं. We have discussed about land. Now the next factor is labor. Who will provide the labor? Labor provide कौन करेगा? After land, labor is the next necessary factor for production. You know it well. Farming requires a great deal of hard work. That's true कि farming के लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है. फार्मिंग इज़ अ बैक ब्रेकिंग टास्क. स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन लैंड्स और फील्ड्स. जो छोटे किसान होते हैं दे आर नॉट एबल टू हायर समबडी एल्स, जिसको वो हायर करें फिर उनका पेमेंट करें. दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम. तो वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने स्मॉल प्लॉट पर खुद से कल्टिवेशन करते हैं, खुद से मेहनत करके खेती करते हैं. Thus, they provide the labor required for farming themselves. तो जो स्मॉल फार्मर्स की लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वो इसे खुद से ही पूरा कर देते हैं. मीन्स दे डू नॉट हायर समबडी एल्स, दे डू नॉट हायर अदर लेबरर्स to work on their fields because they won't be able to hire them, they won't be able to bear the expenses of hiring laborers. तो वो खुद से ही अपनी लेबर की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स. वहीं जो बड़े और मध्य वर्ग के किसान हैं वो लेबर्स को हायर करते हैं रेंट पर ताकि वो उनके फील्ड पर काम कर सकें और बदले में वो उन्हें पेमेंट देते हैं वेजेस के फॉर्म में. Again there is a question, identify the work being done on the field in the picture. अब पिक्चर जो 1.6 है जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किया, इसमें कौन कौन से काम हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करिए एंड अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. और इन सारे स्टेप्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करिए. मीन्स विच सीक्वेंस विल कम फर्स्ट, कौन सा सीक्वेंस पहले आएगा उसमें आपको अरेंज करना है. एंड द ऑप्शंस आर प्लॉगिंग बाय बुलॉक्स, सोइंग, spraying of insecticides, cultivation by traditional method, cultivation by modern method, and cutting of crops. So these are the various stages. You have to put them in a proper sequence. Now, farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land. तो ये बात हुई कि जो मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स हैं दे डू नॉट वर्क देमसेल्फ ऑन देयर फील्ड्स. ये किसी को हायर करते हैं, खुद अपने फील्ड पर नहीं काम करते. तो जिनको ये हायर करते हैं वो लेबरर्स आते कहाँ से हैं? वो लेबरर्स या तो वो लैंडलेस फैमिलीज़ के लोग होते हैं जिनके पास खुद की कोई लैंड नहीं है, वो दूसरे के लैंड पर जाकर कल्टीवेशन करते हैं और उसके अगेंस्ट में वेजेस कमाते हैं. या फिर वो फैमिलीज़, वो स्मॉल फार्मर्स जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है तो वो भी दूसरे के खेतों पर जाकर कल्टीवेशन करते हैं और एडिशनल इनकम अर्न करते हैं. बिकॉज दे आर स्मॉल, दे वोंट बी एबल टू मीट देयर एक्सपेंसेस थ्रू देयर स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. वो अपने छोटे से लैंड से अपने एक्सपेंसेस को फुलफ़िल नहीं कर सकते. तो जो रिमेनिंग टाइम उनके पास होता है वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के फील्ड्स पर जाकर खेती करके पैसे कमाते हैं. Unlike farmers, farm laborers do not have a right
फार्मर्स की तरह जो फार्म लेबरर्स होते हैं, ये जो मज़दूर होते हैं, इनके पास राइट नहीं होता ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। जो भी लैंड पर क्रॉप ग्रो की है उस पर इनका कोई अधिकार नहीं होता है। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर whom दे वर्क। उस क्रॉप के बदले में इनको वेजेस यानी मेहनताना मिलता है। ये जिस भी किसान के लिए जिसके फील्ड पर काम कर रहे होते हैं वो इनको काम के बदले में पैसे देता है। दैट इज़ वॉट वी कॉल्ड वेजेस। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। वेजेस को पे करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कैश देकर यानी पैसों में उनका पेमेंट करिए, या फिर काइंड का मतलब है इन टर्म्स ऑफ गुड्स, आप कुछ सामान देकर उनका पेमेंट करिए। तो इनके लिए जो काइंड में चीज़ें होती हैं वो जनरली क्रॉप होती हैं, यानी कि इनका पेमेंट या तो पैसे देकर होता है या फिर क्रॉप का कुछ हिस्सा इनको देकर इनका पेमेंट किया जाता है। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो। कई बार इन लेबरर्स को फील्ड में काम करते वक्त दिन का एक टाइम का या 2 टाइम का खाना भी मिलता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। अब इनका जो मेहनताना यानी कि जो वेजेस हैं वो हर जगह, हर सीज़न में और हर फसल पर एक बराबर नहीं होते। क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चार्जेस होते हैं। क्रॉप्स के अकॉर्डिंगली इनके चार्जेस बदल जाते हैं, एंड ये जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बेसिस पर भी ये वेजेस जो हैं, ये जो पगार या मेहनताना है, ये अलग अलग होती है। लाइक फॉर एग्जांपल सोइंग का चार्जेस अलग होगा, यानी बीजों को लगाने का चार्जेस अलग होगा। हार्वेस्टिंग के यानी कटाई के जो चार्जेस होते हैं वो अलग होंगे। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। काम करने का जो पूरा ड्यूरेशन होता है, पूरा समय अवधि होती है, उसमें भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। अब ये जो वेरिएशन है काम में वो कैसा हो सकता है, या तो इन मज़दूरों को, ये जो लेबरर्स हैं, इनको डेली बेसिस पर काम पर रखा जाए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, यानी जब जब हार्वेस्टिंग होगी या जब जब प्लॉगिंग होगी या फिर सोइंग होगी तब तब ये आ जाया करेंगे, या फिर इनको होल ईयर्स के लिए भी हायर किया जाता है। Now let's have a look at picture number 1.7. There is a conversation between Dala and Ramkali. Dala and Ramkali are among the poorest native of the village. इसी गांव के poorest peoples में से एक हैं, गरीब है ये काफ़ी। इनके बीच में कुछ conversation हो रही है। Let's have a look on it. Dala says it is difficult to find work these days. Only the large farmers hire us, and that too for very limited number of days. तो डाला ये कह रहा है कि इन दिनों हमारे लिए काम खोजना बहुत दिक्कत भरा रहता है। सिर्फ बड़े किसान ही तो हमें हायर करते हैं, और वो भी बहुत कम दिनों के लिए। नाउ रामकली इज सेइंग घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज़ जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, so we are going to get even less work during the harvest season this year. Last year I worked for less than 5 months in the whole year. So she is explaining her grievances and her sorrow. वो कह रही है कि घनश्याम जो गांव का बड़ा किसान है ना, उसने तो इस साल हार्वेस्टर भी खरीद लिया है। तो अब तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस सीज़न में और भी कम काम मिलने वाला है। लास्ट ईयर तो आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। पिछले साल पता है मैंने एक साल में 5 महीने से भी कम काम किया था। नाउ डाला इज सेइंग वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लॉगिंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेसर्स फॉर थ्रेसिंग्स, इवन फॉर रिमूविंग सीड्स सम फार्मर्स स्प्रे वीडीसाइड। तो वो बता रहा है हाँ हमारे पास तो सब कुछ है ना, ट्रैक्टर्स हैं प्लॉगिंग के लिए, हार्वेस्टर हैं जिससे हार्वेस्टिंग हो जाती है, थ्रेसर से थ्रेसिंग हो जाती है, और इतना ही नहीं, जो खेत में ये जो वीड्स उगती हैं, अनवांटेड ग्रास जिनको कहा जाता है, जो घास उगती हैं, उनको भी रिमूव करने के लिए कई किसान वीडीसाइड स्प्रे कर देते हैं जिनसे वो जल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। सो शी इज सेइंग दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। मुझे लग रहा है इस साल मुझे काम खोजने के लिए रायगंज जाना पड़ेगा, और वो भी फील्ड्स पे काम नहीं मिलेगा, ईंटों का जो भट्टा होता है वहाँ पर ईंटें बनाने का काम मुझे इस साल खोजना पड़ेगा। Now Dala is saying, I owe the local money lender rupees 2000.
I had taken 1000 last summer when no work was available in the fields. How I will ever repay? I hardly earn enough for 2 square meals. कह रहा है कि गांव का ही जो लोकल वो है साहूकार है या मनी लेंडर जिनको कहा जाता है, मैंने उनसे 2000 रुपये ले रखे हैं. लास्ट ईयर 1000 रुपये ले रखा था जब गर्मी में मेरे पास कोई भी काम नहीं था, और इस साल भी इसने ले रखे हैं. सो टोटल 2000 का इस पर लोन है. कह रहा है कि अब मैं रीपे कैसे करूँगा. हार्डली मुझे 2 वक्त की रोटी मिल पाती है और 2000 का लोन मैं अब कैसे चुकाऊँगा. देन रामकली इज़ रिप्लाइंग, माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर. मेरी भी स्थिति अच्छी नहीं है. ड्यू टू पास डेप द मनी लेंडर्स रिफ्यूज़ टू गिव मी एनी लोन. मेरे पिछले या पुराने कर्ज़ों को देखकर साहूकारों ने मुझे पैसे देने से भी मना कर दिया है. गांव के जो सेठ हैं जो पैसे वगैरह देते हैं एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्होंने इसको मना कर दिया कि अब वो इसे और पैसे नहीं देंगे. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ 2 डिफरेंट पीपल who belongs to the poorest category of that village, and they are expressing their grievances and their sorrows to each other. अपना दुख, अपनी दिक्कतें बता रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें उनको हो जाती हैं. और इतना ही नहीं, वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को भी कोस रहे हैं, क्योंकि उन टेक्निक्स के, इन मशीन्स के वजह से भी इनका काम काफ़ी हद तक छिन गया है. डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर. डेली वेज पर काम करने वाला दिहाड़ी का मजदूर है डाला. दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क. अब जब वो डेली बेसिस पर काम करने वाला मजदूर है, इसका मतलब है कि रोज़ उसे काम की खोज में निकलना पड़ता है. द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 per day. That is applied from the month of March 2017. बट डाला गेट्स ओनली 160. यानी मार्च 2017 का जो रेट तय किया गया है इन दिहाड़ी के मज़दूरों के लिए सरकार के द्वारा, वो 300 रुपये प्रतिदिन का है. बट डाला को सिर्फ 160 रुपीज़ का ही पेमेंट मिलता है. देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल अग्री टू वर्क फॉर लो वेजेस. तो डाला को इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने 300 का अमाउंट सेट किया है, 160 रुपये पर काम करने पड़ते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लेबरर्स हैं, इतने ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है लोगों के बीच में कि ऐसी सिचुएशन आती है दैट इफ़ समबडी वुड डिमांड फॉर अ हायर मनी तो उसको काम ही नहीं मिलेगा. इसलिए इनकी मजबूरी हो जाती है कि जो लो वेजेस भी अगर उनको मिल रहे हैं तो वो उस पर काम करने को रेडी हो जाते हैं. एंड दैट हैपेंड विद डाला ऑल्सो. डाला के साथ भी यही हुआ कि वो लो वेजेस पे भी काम करने को तैयार हो गया. डाला कंप्लेंट्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबरर. ये अपनी सिचुएशन की कंप्लेन रामकली से कर रहा है, जो कि खुद एक फार्म लेबरर है, यानी वो भी दूसरों के फील्ड्स पर काम करके ही पैसे कमाती है डेली वेजेस पर. बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज. गाँव के गरीब लोगों में से हैं ये दोनों. Now let's have a look at the questions given below. Why are farm laborers like Dala and Ramkali poor? डाला और रामकली जैसे फार्म लेबरर्स जो हैं ये गरीब क्यों हैं? So I recently told you कि these two peoples were talking about the modern technology as well. तो हम इन टेक्नोलॉजी का भी दोष दे सकते हैं या कह सकते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ के वजह से भी इन फार्म लेबरर्स के काम काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं. और भी बहुत सी सिचुएशन है. रीड द कॉन्वर्सेशन वन मोर टाइम एंड फाइंड आउट दो सिचुएशन. बट आई टोल्ड यू वन ऑफ देम कि जो सबसे हाईलाइटेड है वो यही है कि विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नो डाउट हम सबको बहुत फ़ायदे हुए, लेकिन इस तरह के जो फार्म लेबरर्स हैं, जो पूरेस्ट वर्कर्स हैं, उनका काम छिन गया उनसे. नाउ गोसाईपुर एंड मजौली आर 2 विलेजेस इन नॉर्थ बिहार. ये नॉर्थ बिहार के 2 गांव हैं. आउट ऑफ a total of 850 households in 2 villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana or in Delhi, Mumbai, Surat, Hyderabad और नागपुर. तो टोटल इन दोनों गांव में 850 परिवार के आसपास हैं, जिनमें से लगभग 250 इस गांव के जो मेन हैं वो इन एरियाज़ में लाइक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई,
सूरत, हैदराबाद और नागपुर में एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। सच माइग्रेशन इज़ कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। सो यू गॉट अ न्यू वर्ड, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? जब आप अपना रियल प्लेस या रियल होम टाउन छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, वेदर इन सर्च ऑफ वर्क, वेदर फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी और फॉर एनी पर्पज़, दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। इसको माइग्रेशन कहा जाता है जब आप अपना घर बार या अपना शहर, अपना एरिया छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर काम खोजते हैं, पढ़ाई करते हैं, बस जाते हैं, तो इसको माइग्रेशन कहा जाता है और इनको माइग्रेंट वर्कर्स कहा जाता है। वाई डू पीपल माइग्रेट? अब लोग माइग्रेट करते क्यों हैं? बहुत से रीज़न हो सकते हैं। फॉर बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फॉर गेटिंग बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, फॉर गेटिंग अ बेटर इन्वायरमेंट, सो मैनी रीजंस कैन बी देयर। बहुत से रीजंस हो सकते हैं, बट इन लेबर्स के केस में कहा जाए तो अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ही ये माइग्रेट करते हैं, ताकि ये अपना घर, अपना गांव छोड़कर कहीं और जाएंगे, हो सकता है वहाँ पर उन्हें अच्छा काम मिल जाए। कैन यू डिस्क्राइब based on your imagination the work that the migrants of गोसाईपुर and मजौली might do at the place of destination? क्या आप खुद से इमेजिन करके कुछ बता सकते हैं कि गोसाईपुर और मजौली के जो वर्कर्स हैं अपने अपने गांव से माइग्रेट करके पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली, मुंबई गए हैं, वो वहाँ जाकर काम क्या करते होंगे? सो थिंक अबाउट इट एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, like what you can imagine about them. What would they do at their places? Now the next is capital. The capital needed in farming. The first one was land. Then we discussed about labor. And now the third factor of production is capital. पूंजी, जिनको हम पूंजी कहते हैं। पूंजी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या कैश में, या किसी भी अदर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के फॉर्म में। वो पूंजी हर प्रोडक्शन में काम आती है। यहाँ पर हम फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो फार्मिंग पर डिस्कशन होगा। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। आपने ऑलरेडी देख लिया कि जो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कल्टीवेशन है, जो नई तकनीक है खेती की, उसमें जो जो इनपुट्स चाहिए उनके लिए काफ़ी कैपिटल की ज़रूरत है। अब ये कैपिटल ये फार्मर्स अरेंज कहाँ से करते हैं? मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अगर हम छोटे किसानों की बात करें तो इन्हें लोन लेना पड़ता है या पैसे उधार लेने पड़ते हैं गांव के ही सेठ, साहूकार या महाजन लोगों से। और जनरली ये जो मनी लेंडर से पैसे लेते हैं बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। यानी अगर आप किसी बैंक से लोन ले लें, उसका इंटरेस्ट उतना हाई नहीं होगा जितना इन मनी लेंडर्स के द्वारा चार्ज किया गया इंटरेस्ट होता है। ये जो ब्याज लगाते हैं दैट इज़ वेरी वेरी हाई। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, या तो कई बार वो बड़े किसानों से भी पैसे उधार ले लेते हैं, और नहीं तो मैंने बताया कि गांव में जो सेठ हैं, साहूकार या महाजन हैं, बड़े ठेकेदार हैं या बड़े ट्रेडर्स यानी व्यापारी हैं, तो उनसे पैसे लेते हैं। हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो ब्याज लगाते हैं बहुत हाई होता है। दे आर पुट टू ग्रेट स्ट्रेस टू रीपे द लोन। और यही कारण है कि इन स्मॉल फार्मर्स पर इतना बोझ आ जाता है, इतना बर्डन, इतना स्ट्रेस हो जाता है दैट दे गेट अनएबल टू रीपे देम। वो अपना लोन चुका नहीं पाते और एक प्रकार के डेब्ट ट्रैप में यानी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु यूज टू टेक लोन्स ईदर फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और फ्रॉम मनी लेंडर्स और इवन फ्रॉम ट्रेडर्स। कई बार वो जो व्यापारी होते हैं जो इनको इनपुट्स देते हैं उन्हीं से ये लोन ले लेते हैं और फिर इनपुट्स खरीदते हैं। सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर। सविता एक छोटी किसान है। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 हेक्टेयर की ज़मीन पर उसको खेती करनी है। एंड फॉर दैट besides seeds, fertilizers and pesticides she needs cash to buy water and repair her farm instruments. अब खेती के लिए आपको पता है सीड्स की ज़रूरत है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवाइयाँ भी चाहिए, और इतना ही नहीं उसको इरिगेशन के लिए वाटर भी चाहिए, और जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं खेती के लिए उनकी रिपेयरिंग भी करवानी है, उसको मरम्मत करवानी है। सो फॉर ऑल दोज रिक्वायरमेंट उसको पैसों की भी ज़रूरत है।
She estimates that the working capital itself would cost a minimum of rupees 3,000. She doesn't have the money, so she decides to borrow from Tejpal Singh, a large farmer. तो बेसिकली उसने जो कैलकुलेशन किया, उसने ये पता लगाया कि जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल आई टोल्ड यू अर्लियर, कैपिटल दो ग्रुप में होती हैं, फिक्स्ड जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, यानी कि जो रोज़मर्रा के खर्चों में जिन पूंजी की ज़रूरत होती है, जिन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल वर्किंग कैपिटल. तो बीज खरीदना, खाद खरीदना या फिर दवाइयाँ और वाटर सप्लाई वगैरह की रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल में आती है. तो इसके लिए 3,000 का उसने एस्टिमेट तैयार किया और पैसे उसके पास है नहीं, तो गांव का ही एक बड़ा फार्मर है तेजपाल सिंह, उसने डिसाइड किया कि वो उससे बोरो करेगी. तेजपाल सिंह अग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 months, विच इज़ अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हर. इसका मतलब तेजपाल सिंह ने उसको लोन देने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन उसने 24% का ब्याज लगाया, वो भी सिर्फ 4 महीने के लिए, जो कि एक्सट्रीमली हाई है. Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹100 per day. इसके साथ साथ सविता को ये भी उससे वादा करना पड़ा, लोन लेने के साथ साथ 24% का ब्याज देने के साथ साथ, कि जब सीज़न होगा हार्वेस्टिंग का, कटाई का, तो वो उसके फील्ड पर ही काम करेगी, कहीं और नहीं जाएगी, और जो उसको वेजेस मिलेंगे दैट वुड बी ओनली ₹100 पर डे. एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो. अब आप देख रहे हैं कि ये वेज ₹100 पर डे का जो वेजेस है बहुत ज़्यादा कम है. एंड सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड, देन वर्क एज अ फार्म लेबरर और तेजपाल सिंह फील्ड्स. अब सविता जान रही है कि उसे कितना कठिन परिश्रम करना है, कितना मेहनत करना है. अपने फील्ड पर पहले वो काम करेगी, फिर तेजपाल सिंह के भी फील्ड पर जाकर काम करेगी. द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम, और ये जो हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है, कटाई का, बहुत ही बिजी होता है. एज अ मदर ऑफ 3 children, शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब उसके 3 बच्चे हैं, सो बीइंग अ मदर उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी भी है. सविता agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. लेकिन इतना सब डिफ़िकल्टीज़ देखने के बाद भी वो अग्री कर जाती है कि वो लोन लेगी, 24% का इंटरेस्ट भी देगी और ₹100 पर डे के वेजेस पर काम भी करेगी, क्योंकि वो जान रही है कि छोटे किसानों के लिए काम मिलना और लोन मिलना दोनों बहुत डिफ़िकल्ट है. नाउ पॉइंट नंबर 2, इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स के विपरीत, द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग. जितने भी मध्य और बड़े किसान होते हैं, मध्य वर्ग के और ये जो लार्ज फार्मर्स हैं, इनके पास अपने ही फार्मिंग से काफ़ी हद तक सेविंग्स होती हैं. दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड. इसलिए ये अपनी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उन्हीं सेविंग से फुलफ़िल कर लेते हैं, इनको किसी से बोरो करने की या लोन लेने की ज़रूरत नहीं होती. हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स. अब क्वेश्चन ये आता है कि इन किसानों के पास सेविंग्स आती कहाँ से हैं. यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन. इसका आंसर आपको हो सकता है नेक्स्ट सेक्शन में मिल जाए. एंड नाउ लेट्स डिस्कस द स्टोरी. सो फार वी हैव रेड अबाउट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर हमने चर्चा की, लैंड, लेबर और कैपिटल, एंड हाउ दे आर यूज इन फार्मिंग, और ये फार्मिंग में कैसे यूज़ किए जाते हैं. Let us fill in the blanks given below. Among the 3 factors of production, we found that labor is the most abundant factor of production. So, हमने 3 factors पढ़े, उनमें से हमने ये पाया कि लेबर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला factor of production है. There are many people who are willing to work as farm laborers in the villages, whereas the opportunities of work are limited. क्योंकि बहुत से लोग हैं जो फार्म पर, खेतों पर काम करने को तैयार हैं गांव में, बट उसके एवरेज में जो उनको काम मिलता है वो बहुत कम होता है. यानी वर्कर्स ज़्यादा हैं, लेबरर्स ज़्यादा हैं और काम देने के लिए कम है. दे बिलोंग टू ईदर लैंडलेस फैमिलीज़ और
स्मॉल फार्मर्स। अब आपने पढ़ा ये सारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस डिस्कशन। तो आपने ये पाया कि ये जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं या तो ये छोटे परिवार के या छोटे किसान होते हैं या फिर लैंडलेस फैमिलीज़ होते हैं, यानी जिनके पास खुद की कोई लैंड नहीं होती। दे आर पेड लो वेजेस, इनको लो वेजेस पे किया जाता है और ये एक बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ जीते हैं। इन कंट्रास्ट टू लेबर, कैपिटल इज़ अ स्कैर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लेबर की तुलना में कैपिटल जो है पूंजी वो बहुत कम अवेलेबल है। कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज़ 2 हेक्टेयर, जो कल्टिवेशन का लैंड एरिया है वो 2 हेक्टेयर का है। मोर एवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अनईक्वली, यानी ये जो लैंड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल नहीं है among the people engaged in farming. There are a large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in condition not much better than the landless farm laborer. उसी तरह से जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। जिस तरीके से लैंडलेस लेबर्स रहते हैं कहीं ना कहीं उसी तरह की कंडीशन इन स्मॉल फार्मर्स को भी फेस करनी पड़ती है। दे आर नॉट अंडर अ good condition. And to make the maximum use of existing land, farmers use multiple cropping and HYV seeds. और लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, यानी लैंड तो बहुत लिमिटेड है, लैंड की एरिया को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, पर उतने ही लैंड से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फार्मर्स या तो मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड यूज़ करते हैं या मॉडर्न सीड्स यानी कि HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है। बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, और ये दोनों मेथड्स ने फार्मर्स की बहुत मदद की है क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं उनमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल मेथड। स्मॉल फार्मर्स यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। होता क्या है, ये जो छोटे किसान हैं इनको हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कैपिटल बोरो करने की ज़रूरत पड़ती है, या तो सेठ, साहूकार, महाजन या फिर गांव के जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े किसान हैं, उनसे इनको पैसे बोरो करने पड़ते हैं। और बोरो करने के बाद ये लोन के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में फंस जाते हैं, डेब्ट ट्रैप में आ जाते हैं। Therefore, capital too is a scarce factor of production, particularly for the small farmers. तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूंजी है ये स्कैर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी इसकी अवेलेबिलिटी लेबर से काफ़ी कम है। Therefore, we can conclude that capital is a scarce factor of production. Though both land and capital are scarce, there is a basic difference between the two factors of production. हालांकि दोनों, चाहे लैंड की बात की जाए या फिर कैपिटल की, दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्कैर्स हैं यानी लिमिटेड इन नेचर हैं, लेकिन इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस ये है दैट लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। लैंड एक प्राकृतिक संसाधन है, एक नेचुरल रिसोर्स है, एंड कैपिटल इज़ मैन मेड। कैपिटल जो है पूंजी वो मानव निर्मित यानी कि मैन मेड रिसोर्स है। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल को बढ़ाना पॉसिबल है, वेयर एज लैंड इज़ फिक्स। लेकिन लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर लैंड का जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता बिकॉज इट इज़ फिक्स। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज यूज इन फार्मिंग। सो इट बिकम नेसेसरी फॉर अस, ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लैंड का प्रॉपर केयर करें, इसको डिप्लीट होने से, इनफर्टाइल होने से बचाएं, सॉइल को इरोड होने से रोकें, क्योंकि लैंड को बढ़ाया नहीं जा सकता, लैंड फिक्स है। नो डाउट किसी के पास ज़्यादा होगी, किसी के पास कम, और ये डिस्ट्रीब्यूशन समय समय पर चेंज भी हो जाए, बट जो टोटल एरिया ऑफ लैंड है वर्ल्ड में अवेलेबल उसको कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। दैट्स वाई लैंड इज़ फिक्स्ड, while on the other hand capital can be exceeded, capital can be depleted. So we should work on the creation of capital because we cannot create land. So this is enough for today's class. In the next class we'll have a discussion about the sale of surplus farm products. ये जो लोग हैं पालमपुर के,
फार्म प्रोडक्ट जो इनका होता है अपने कंजम्पशन के लिए रखने के बाद जो सरप्लस होता है वो इसे कहाँ पर सेल करते हैं और किस तरीके से सेल करते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो और भी अदर एक्टिविटीज़ हैं विच आर नॉन फार्म एक्टिविटीज़, उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। एंड टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू एवरीवन।